हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी जो हम गाइटन से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज़ अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टूडेंट्स अपने अर्ली डेज ऑफ द मेडिकल स्कूल में ये उनको टॉपिक पढ़ाया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पजेज है। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। अबाउट 40% ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली स्केलेटल मसल। सो ज़रा देखें, इट्स अ बिग परसेंटेज, यानी मोस्ट ऑफ योर body is actually made up of muscles as you can see, okay, and perhaps another 10% is smooth and cardiac muscle। यानी अगर बात ये करें कि तकरीबन 50% of the body is made up of muscles, जिसमें से 40% तकरीबन skeletal muscles हैं जो आपकी bones पर हैं, and about 10% are smooth muscles which are in the, for example, GI tract, in the excretory system and other parts of the body, and also the cardiac muscle which is present in the heart. So 50% is a big number. 50% of your body is made up of muscles. Some of the basic principles of contraction apply to all these types of muscles. Although इस chapter में we are going to focus only on skeletal muscles, but the general principles will also apply on cardiac muscle contraction and smooth muscle contraction, which we will deal separately in chapter number 8 and chapter number 9 respectively. Today is chapter number 6, okay? Physiological anatomy of skeletal muscle. Now that's something important because यहाँ जो एनाटमी एक्सप्लेन करेंगे अभी, दैट इज मोर पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स की एनाटमी देखते हैं। नाउ दे skeletal muscles are composed of numerous fibers ranging from 10 to 80 micrometers in diameter. Each of these fibers is made up of successively smaller subunits and described in अभी ये describe होगा थोड़ी देर में. In most skeletal muscles, each fiber extends the entire length of the muscle, except for about 2% of the fibers. Each fiber is innervated by only one nerve ending. So ये क्या बात हो रही है? बात यहाँ पे ये हो रही है कि suppose we talk about any muscle. So say for example there is a bone and this bone is a humerus bone and then there are radio ulna. Okay, so these are the bones. और यहाँ पे मैं एक मसल अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो that is the bicep muscle. Okay, so bicep muscle इस तरह से आपके आर्म के कंपार्टमेंट में मौजूद है और ये पूरा एक लंबा सा मसल है. So इसके अंदर if you take that bicep muscle for example and try to have a look, so here they have shown bicep muscle. Okay, so this is humerus and this is radio ulna and that is the bicep muscle. So bicep muscle को अगर हम यूँ देखें and cross section में देखें, so internally it is made up of small fibers. ये जो पूरा मसल का चंक है इसको हम नाम देते हैं मसल fasciculus. अब यहाँ टर्मिनोलॉजीज याद रखना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइट टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं पता होगी then you won't be able to understand properly. So ये जो पूरा मसल का बंडल है, the whole bundle is known as muscle fasciculus. Okay, अब इसका जब सेक्शन करके अंदर से देख रहे हैं तो you see there are these small fibers. ये फाइबर है, ये एक फाइबर है, that's a fiber, that's a fiber, और एक फाइबर को बाहर निकाल करके बड़ा करके देख रहे हैं. So ये जो एक फाइबर है इसका नाम है मसल फाइबर. सिंपल थिंग. So the muscle is composed of muscle fasciculus. The fasciculus is composed of many muscle fibers. और अगर इस एक मसल फाइबर को क्रॉस सेक्शन करके देखें तो इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपको दिख रहे हैं. एंड दीज स्मॉलर यूनिट्स इनसाइड अ मसल फाइबर दे आर नोन एज मायोफाइब्रिल. सो मायोफाइब्रिल इज द स्मॉलर यूनिट. ठीक है, तो इट गोज लाइक दिस: मसल फैशिकुलस टू मसल फाइबर टू मायोफिब्रिल. और फिर ये मायोफिब्रिल में हम डिस्कस करेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एक्टिन, मायोसिन एंड व्हाट नॉट. ओके, लेकिन ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ मसल फैशिकुलस, देन व्हाट इज अ मसल फाइबर एंड देन व्हाट इज अ मायोफिब्रिल. ओके, सो ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज गो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ थिननेस. Fasciculus is the whole bundle. Fasciculus is composed of fibers and fibers are composed of myofibrils. Okay, और फिर ये जो पूरा मसल है यूजुअली इन द सेंटर ऑफ द मसल एक नर्व आके सप्लाई करती है और वो इस एरिया से जो एक्शन पोटेंशियल है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो यूजुअली द मसल्स आर इनर्वेटेड बाय ओनली वन नर्व एंडिंग. ओके, लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द मसल फाइबर.
Now the sarcolemma, this is another terminology that we have to understand. It's nothing but actually the cell membrane or the membrane. It's a thin membrane. Cell membrane तो exactly कहना इसको ठीक नहीं होगा, but it's a thin membrane which encloses the skeletal muscle fiber. यानी यहाँ ये जो पूरा muscle fasciculus था, उस fasciculus के अंदर ये जो एक fiber था, इस fiber की जो outer layer होगी, that is known as sarcolemma. So sarcolemma is the terminology used to describe the outer covering or the membrane of a skeletal muscle fiber. ठीक है? The sarcolemma consists of true cell membrane-like structure, the plasma membrane, and the outer coat made up of thin layer of polysaccharide material that contains numerous thin collagen fibrils. तो cell membrane की तरह है, plus इसमें कुछ और modifications भी हैं. At each end of the muscle fiber, this surface layer of the sarcolemma fuses with a tendon fiber, and the tendon then attaches onto the bones. ठीक है? तो यानी अगर यहाँ हम देखें, so at the top it will be all covered, each muscle fiber will be covered with sarcolemma, और sarcolemma यहाँ tendon के साथ fuse हो जाएगी और tendon फिर bone में, दोनों ends पर tendon का काम यही है कि muscle fasciculus को bones के साथ attach कर दे. So that will happen. Okay, so this paragraph is clear. Now myofibrils are composed of actin and myosin. ये जो मैंने आपको units बताए, इसमें जो सबसे छोटा unit था, that was the myofibril. It is composed of different types of proteins. Okay, एक protein जो हम पढ़ेंगे, that is actin, the other protein is known as myosin. So each muscle fiber contains several hundreds to several thousands of myofibril. ये diagram याद रखनी है कि fasciculus के अंदर ये जो छोटे units हैं, these are muscle fibers. Muscle fiber के अंदर ये जो छोटे units हैं, these are myofibrils. ठीक है? And they are in a count of about several hundreds. It's a big number, to several thousands even. एक मसल फाइबर के अंदर, पहले तो सोचो कितने सारे मसल फाइबर होंगे, फिर हर एक मसल फाइबर के अंदर hundreds to thousands of myofibrils होंगे. Okay? Now each myofibril is composed of about 1500 adjacent myosin protein filaments and about 3000, यानी double the number. So मायोसिन का डबल इज द नंबर फॉर एक्टिन. अभी थोड़ी देर में ये समझेंगे भी ऐसा क्यों है. दीज फिलामेंट्स कैन बी सीन लॉन्गिट्यूडनल व्यू इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एंड आर रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली. अभी देखते हैं डायग्राम. द थिक फिलामेंट्स इन द डायग्राम आर द मायोसिन एंड द थिन फिलामेंट्स आर एक्टिन. नाउ दीज आर बोथ प्रोटीन्स. ओके, सो इफ यू लुक हियर, दिस इज अ मायोफिब्रिल. दिस इज अ मायोफिब्रिल. इसका एक पोर्शन बड़ा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो इट अपीयर्स लाइक दिस. थोड़ी देर में वी विल ऑल्सो स्टडी कि इसमें मजीद क्या क्या चीज़ें हैं. बट इफ़ यू हैव अ लुक हेयर, सो यहाँ पर एक तो ये सेंटर में जो थिक प्रोटीन है, दिस इज मायोसिन, और ये जो ऊपर इस तरह सिंगल थिन प्रोटीन चल रही हैं इस तरफ भी, और यहाँ पे ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एक्टिन. तो एक्टिन जो है, दे आर थिन प्रोटीन्स एंड मायोसिन आर द थिक फिलामेंट्स. ओके, सो thick filament myosin, thin filaments actin. Okay, right, let's move forward. Now myosin and actin filaments partially interdigitate and thus cause the myofibrils to have an alternating dark and light bands as illustrated in the diagram. abhi dikhata hu. The light bands contain only actin filaments and are called the I bands because they are isotropic to polarized light. The dark bands contain myosin filaments as well as the actin filaments where they overlap the myosin and these are called the A bands. अब ये सब terminologies हमें समझनी है. I band क्या होता है, A band क्या होता है, अभी diagram पे दिखाता हूँ. Note also the small projection from side of the myosin filament which are known as the cross bridges. Another terminology. तो मैं इनको highlight कर देता हूँ. I band, A band, and cross bridges, ये चीज़ हमको समझनी है. ठीक है? Also the light bands and the dark bands, इसके concepts मैं ज़रा अभी आपको दिखा दूँ और फिर हम दोबारा चलते हैं. So here if you see there are areas which are appearing a little darker. So basically अगर इस diagram को हम देखें, this diagram of a myofibril, तो इसमें कुछ areas हैं जो ये वाला, this is light color area, all this is light brown, then there is a dark brown area, है ना. So जो light brown area है, light band नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, that is known as I band. ठीक है? और जो dark area है, that dark area is known as A band. अब अगर इसको फर्दर इन्हांस करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो जो लाइट एरिया है, इट इज़ मेड अप ओनली ऑफ द एक्टिन प्रोटीन्स. ओके, इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ द एक्टिन प्रोटीन. जबकि ये जो डार्क बैंड है यानी ए बैंड, इट इज़ मेड अप ऑफ, मैं इसको मिटा दूं ताकि रब करके कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए. जो डार्क बैंड है, इट इज़ मेड अप ऑफ दिस
एंड दिस वी मीन मायोसिन प्रोटीन। लेकिन हर मायोसिन प्रोटीन को अगर आप देखें तो इसके ऊपर और नीचे इसको ओवरलैप करता है एक्टिन प्रोटीन। सो यू सी हियर दैट्स अ मायोसिन प्रोटीन। ये मैं जितना भी एरिया इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ दैट्स द मायोसिन प्रोटीन। लेकिन मायोसिन प्रोटीन को ये देखें एक्टिन इसको ओवरलैप कर रहा है। सो हियर वी हैव एन एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जिसमें मायोसिन प्रोटीन भी है और ये छोटा सा एक्टिन का ओवरलैप भी है। तो ये जो पूरा एरिया है, ऑल दिस एरिया इज बेसिकली द डार्क बैंड। दिस इज ऑल नोन एज द डार्क बैंड और यू कैन सिंपली कॉल इट द ए बैंड। ओके, तो अब ये बात आपकी समझ में आएगी कि जो आई बैंड है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट्स, जबकि जो ए बैंड है इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन एज वेल एज मायोसिन फिलामेंट। ठीक है। अच्छा, फिर एक टर्मिनोलॉजी है जेड डिस्क। ये भी हमको समझनी है क्योंकि आगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इस वक्त स्लोली आपको तमाम टर्मिनोलॉजीज इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम कॉन्ट्रैक्शन में ये सारे नाम डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ जेड डिस्क जो है इट इज़ बेसिकली अ प्रोटीन एज वेल, और इस प्रोटीन पर आप देखें एक्टिन अटैच होता है। सो द एक्टिन ऑन वन एंड इज अटैच ऑन द जेड डिस्क, सो दैट्स द जेड डिस्क। एक जेड डिस्क और दूसरे जेड डिस्क के बीच में जो पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है इसको हम नाम देते हैं सार्कोमेयर। सो सार्कोमेयर इज द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर एंड द सार्कोमेयर लाइज बिटवीन one Z disk and the other Z disk। ओके, इसके बीच में सारा एक्टिन और मायोसिन होता है। सो Z disk की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। From this disc, these filaments extend in both the directions to interdigitate. Now, this is all what I've already told you. The portion of the myofibril that lies between two successive Z discs is known as a sarcomere. ये मैंने आपको बता दिया कि it is the basic functional unit of the muscle. Okay. Now, the length of the sarcomere is about 2 micrometers. At this length, the actin filaments completely overlap the myosin filament, and the tips of the actin filaments are just beginning to overlap one another. As discussed later in this chapter, the muscle capable of generating its greatest force of contraction at this particular length. So बात ये हो रही है कि ये जो सार्कोमेयर है, सो सार्कोमेयर जो कि 2 Z डिस्क या इस डायग्राम में देख लेंगे, बल्कि ज़्यादा क्लियर इस डायग्राम में, सो दैट्स द सार्कोमेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। और इस पूरे सार्कोमेयर की यूजुअल लेंथ बताई है कि लेंथ इसकी कितनी होती है, रफली अराउंड 2 माइक्रोमीटर सॉरी। अब अगर ये 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर ये 2 माइक्रोमीटर से कम हो जाएगा तब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी चेंज होगी। ठीक है, सो दैट इज द ऑप्टिमल लेंथ ऑफ अ सार्कोमेयर फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। राइट, लेट्स मूव अहेड। एक वर्ड मैंने अभी छोड़ा है, क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस बेसिकली ये होते हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट में भी थोड़ी देर में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हर फिलामेंट के आगे एक ऐसे हेड निकला होता है, छोटा सा मायोसिन हेड निकला होता है, और ये जो हेड है, दिस हेड इज एक्चुअली नोन एज द क्रॉस ब्रिज। और ये क्रॉस ब्रिज बहुत ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आगे इस चैप्टर में हम इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो मायोसिन फिलामेंट है उसमें से क्रॉस ब्रिजेस निकलते हैं। ओके, नाउ टाइटिन फिलामेंट molecules keep up the myosin and actin filaments in place। ये सुने जनाब क्या चीज़ है, मैं आपको ये डायग्राम पे दिखा देता हूँ, फिर हम इसके बारे में स्टडी भी कर लेते हैं। So this is a sarcomere because here we see a Z membrane, here we see another Z membrane, Z और Z membrane के बीच में it's all the sarcomere। और इस sarcomere में जो सेंटर में thick protein है, all that thick protein is the myosin। अच्छा, myosin के अगर lateral ends पर आप देखें, so that's a myosin, इसके lateral end पर ये एक प्रोटीन चल रही है जो myosin को बाइंड करती है Z membrane के साथ, और ये इस तरफ भी है lateral end पर, there is a protein which is binding myosin to the Z membrane, और ये हर myosin filament के साथ है। इसके कुछ attachments actin के साथ भी होते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो एक्टिन और मायोसिन को अटैच करते हैं इस तरह कि उनको अपनी पोजीशन पर रखें, दीज आर नोन एज टाइटिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो टाइटिन आहिस्ता आहिस्ता देखें आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है इस पूरे चैप्टर को लेकर। आपको पता है अब एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, आपको सार्कोलेमा पता है, आपको ये मालूम है कि व्हाट इज़ अ मसल फाइबर, व्हाट इज़ अ मायोफिब्रिल। सो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज अब आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है। किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी बेसिक डिक्शन पता होना ज़रूरी है। अगर आपको वोकैबुलरी समझ में आएगी तो आगे पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा आपको समझाना, क्योंकि आगे जब मैं बात कर रहा हूँ कि सार्कोलेमा की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सार्कोलेमा की लेंथ शॉर्ट
शॉर्टन हो रही है, तो अब आप मेरा मुंह देख रहे हैं कि भाई ये सार्कोलेमा ही क्या चीज़ है, वो ही नहीं पता तो उसकी लेंथ का क्या घंटा समझ में आना है। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म्स फर्स्ट। ओके, नाउ ये मैंने आपको बता दिया टाइटिन फिलामेंट्स, एंड दैट्स ऑल इज रिटन हेयर। इनका काम बेसिकली एक्टिन और मायोसिन को बाउंड करके रखना है। नाउ वन एंड ऑफ द टाइटिन मॉलिक्यूल इज इलास्टिक एंड इज अटैच्ड टू द जेड डिस्क। दिस इज ऑल दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, now sarcoplasm is the intracellular fluid between myofibril. now जिस तरह मायोफाइबर या मसल फाइबर की आउटर लेयर को हमने नाम दिया था सार्कोलेमा, बिल्कुल इसी तरह जो मसल सेल्स के अंदर का साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म को नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसे? सार्कोप्लाज्म। सो सार्कोप्लाज्म इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स. Many myofibrils are suspended side by side in each muscle fiber. The space between the myofibrils is filled with a liquid intracellular fluid, and this is known as sarcoplasm. It contains large quantities of potassium, magnesium, phosphate, plus multiple protein enzymes. Also present are tremendous number of mitochondria because muscle ने contract होना है, और contract होने के लिए ATP energy चाहिए, और वो energy कहाँ बनेगी? Mitochondria में. So the muscle fibers have very high number of mitochondria. These mitochondria supply contracting myofibrils the large amount of energy which is required. Okay, ATP. So sarcoplasm, another addition to your vocabulary. Another word is the sarcoplasmic reticulum. हमने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे स्टैक्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. यहाँ मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को क्या नाम देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक. सार्को इज द वर्ड फॉर मसल. Okay, so sarcoplasmic reticulum. Also in sarcoplasm surrounding the myofibril, each muscle fiber के अंदर there are sarcoplasmic reticulums, और ये बहुत important है muscle contraction के लिए because they are the storage sites for calcium. अच्छा, कैल्शियम इनमें से रिलीज होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी. देखो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली आपको ये पूरा प्रोटीन का सेटअप चाहिए, जिसमें एक थिक मायोसिन प्रोटीन है, साइड पर ये एक्टिन प्रोटीन्स हैं. फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एटीपी चाहिए, और एटीपी के साथ यू ऑल्सो नीड कैल्शियम. तो कैल्शियम कहाँ से आता है? फ्रॉम दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ स्टोर होता है ये. ठीक है. नाउ द रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप्स ऑफ मसल्स हैव स्पेशली एक्सटेंसिव. वो मसल्स जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, वो तमाम मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी वेरी नंबर उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई इसलिए होता है ताकि एटीपी मिले. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर हाई इसलिए होता है ताकि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जारी और सारी रहे. सो That's all about the basics of contraction of skeletal muscles. अब हम आगे बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके जनरल मैकेनिज्म्स हैं क्या. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ हाउ द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे स्टेप वाइज बड़े अच्छे तरीके से पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. ठीक है. द इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेप्स. वेरी नाइस, वेरी इन ए क्रिस्प मैनर ये लिखा हुआ है. तो आइए इसको ज़रा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा ताकि ये हमेशा के लिए समझ में आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, मसल कॉन्ट्रैक्शन या कोई भी काम बॉडी में स्टार्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि नर्व के ज़रिए एक एक्शन पोटेंशियल उस एरिया तक पहुँचे. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन की. सो एन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलॉन्ग अ मोटर नर्व to its ending on the muscle fiber. Basically arrangement इस तरह से होता है कि there is a muscle fiber. So say for example this is a muscle, और यहाँ पे एक नर्व आ रही होती है, तो इस जगह को हम कहते हैं नर्व एंडिंग. ये नर्व एंडिंग है और ये रहा मसल फाइबर. अब होता ये है कि एक्शन पोटेंशियल, यानी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब इसको कोई कमांड मिलेगी. तो वो जो कमांड है उस कमांड को हम फिजियोलॉजी की टर्म्स में नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल. यानी ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आपने सोचा कि भाईजान कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ऐसा नहीं है. यहाँ पे देयर इज़ अ रिलीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और वो एक्शन पोटेंशियल फिर केमिकल चेंजेस करके मसल में एक्चुअली फिजिकली कॉन्ट्रैक्शन होती है. सो एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन इज़ द फर्स्ट स्टेप. और बेसिकली एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नर्व एंडिंग यहाँ पर मौजूद है, जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, किधर गई यार, हाँ ये यहाँ पर जब हायर सेंटर्स से कॉन्ट्रैक्शन की कमांड आएगी तो इस नर्व एंडिंग पर रिलीज होगा एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन.
ये एसिटाइल कोलिन ये करेगा कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से चैनल्स होंगे, सोडियम चैनल्स, उनको ओपन कर देगा। सो नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन निकला, एसिटाइल कोलिन ने सोडियम चैनल्स ओपन किए, सोडियम चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे सोडियम सेल्स के अंदर चला जाएगा। दिस इज द इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये होता है एक्शन पोटेंशियल के स्टार्ट होना। एट ईच नर्व एंडिंग द नर्व सिक्रीट्स a small amount of neurotransmitter called acetylcholine. This acetylcholine acts on the local area of the muscle and opens up the acetylcholine gyrate cation channels. और वो जो cation channels हैं वो basically sodium channels हैं, ठीक है। The opening of the acetylcholine gyrate channels allow large quantities of sodium to diffuse to the interior of the muscle fibers. This action causes local depolarization. इसे हम कहते हैं depolarization. Initiation of action potential, depolarization, all the same thing. हो क्या रहा है? सोडियम अंदर एंटर हो रहा है। Now the action potential travels along the muscle fiber membrane in the same way that the action potential travel along the nerve fiber. The action potential depolarizes the muscle membrane and much of the action potential electricity flows through the center of the muscle. Here it causes Sarcoplasmic Reticulum to release large quantities of calcium, and those calcium actually are stored within the Sarcoplasmic Reticulum. They are now released, and once they are released, they initiate the attractive forces between actin and myosin, और contraction शुरू हो जाती है। And after a fraction of second, the calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic reticulum. यानी जो sarcoplasmic reticulum बाहर आया था, कैल्शियम जो बाहर आया था sarcoplasmic reticulum से, वो वापस अंदर पंप कर दिया जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से पूरी कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी काम करती है। क्या क्या स्टेप्स हैं इस डायग्राम पे दोबारा समझ लो। नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन ने चैनल्स ओपन किए सोडियम अंदर। अब ये जो सोडियम अंदर आया है ये बेसिकली इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्शन पोटेंशियल की मेरी अलग से वीडियोस भी हैं, वो भी देख लीजिएगा। सो और ये जो डीपोलराइजेशन है बराबर में और चैनल्स खुलते हैं और सोडियम आता है और पूरे मसल पर डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। अब ये जो सोडियम अंदर आ जाता है, ये सोडियम क्या करता है कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है और उसको बोलता है चलो भाई जागो और क्या निकालो, कैल्शियम। और ये जो कैल्शियम निकलता है, ये कैल्शियम यहाँ पर मायोसिन होगा, एक्टिन होगा, उनको जाकर के कहता है चलो भाई जुड़ो आपस में और कॉन्ट्रैक्शन शुरू करो। तो ये पूरा कैस्केड है कि ये सारे स्टेप्स अगर आप दोबारा देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन निकल गया, एसिटाइल कोलिन ने सोडियम चैनल्स खोल दिए, लोकल डीपोलराइजेशन हो गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला, उस कैल्शियम ने ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो कैल्शियम दोबारा पंप हो जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस रुक जाता है। सो दैट्स व्हाट द बेसिक फिनोमिना इज। ओके, तो ये जो पूरी प्रोटीन मशीनरी है मैं बार बार बता रहा हूँ, अलोन इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए देखो आपको क्या क्या चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक तो आपको चाहिए प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? एक्टिन, मायोसिन, ये सारे प्रोटीन्स। फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए एटीपी यानी एनर्जी। फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए कैल्शियम। ये सारी चीज़ें होंगी तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा और ये सारा प्रोसेस तभी काम करेगा जब नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और डीपोलराइजेशन होगी। ठीक है, सो दैट्स द जनरल फिनोमिना। अब थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह मोलेक्युलर लेवल पर किस तरह से ये प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है। अच्छा, मोलेकुलर मैकेनिज्म्स में एट द वेरी फर्स्ट हेडिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी विच इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्लामेन थ्योरी या स्लाइडिंग फ्लामेन मैकेनिज्म। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो सेंट्रली प्लेस्ड हैं। सो इफ़ आई ड्रॉ अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस, सो से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मायोसिन फिलामेंट और इस मायोसिन फिलामेंट पर यहाँ ऊपर इस तरह से मौजूद हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स एंड अबव एंड बिलो द मायोसिन। सो दिस इज सेंट्रल मायोसिन, दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, दीज वर्टिकल लाइंस आर द जेड मेम्ब्रेन्स। ओके, तो होता बेसिकली ये है कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, जो अगर मैं बिल्कुल सिंपल करके आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझाऊं तो द थ्योरी इज कि एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से जो मायोसिन है उसके जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं और एक्चुअली एक्टिन को यूं अंदर की तरफ पुल करते हैं, इस डायरेक्शन से भी और यहाँ से भी ये इंट्रैक्शन होता है और एक्टिन यूं
पुल हो जाता है। अब जब ये एक्टिन अंदर की तरफ आता है तो नेक्स्ट डायग्राम अगर बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इफ यू सी अगेन देयर इज अ मायोसिन हियर, बट नाउ इफ यू सी द डायग्राम यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट अ डिफरेंस व्हिच इज अ वेरी प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डायग्राम। ऑल्दो माय डायग्राम इज नॉट वेरी गुड, बट अगर इस डायग्राम नंबर 1 को आप देखें और इस डायग्राम नंबर 2 को देखें तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो अब अंदर की तरफ आ गए हैं इस डायग्राम में। यू सी हियर, ये वाला जो गैप था एक्टिन और एक्टिन के बीच में, ये वाला जो गैप था, ये गैप बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो गया है इस डायग्राम में। क्यों? क्योंकि दोनों जानिब से, दोनों तरफ से एक्टिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ मूव किए हैं, स्लाइड किए हैं। यहाँ से भी स्लाइड कर चुके हैं, यहाँ से भी स्लाइड कर चुके हैं, इसीलिए इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी वियर्ड सी, बड़ी फनी सी, बट दैट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। आप सब ने एक मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन की बड़ी पुरानी सी मूवी है, उसका नाम है मर्द। इसका डायलॉग भी बड़ा मशहूर है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। सो दैट मर्द मूवी इज अ वेरी ओल्ड मूवी बट अ वेरी नाइस मूवी एक्चुअली। उसमें एक सीन है जिसमें फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, विच इन दैट पर्टिकुलर मूवी द कैरेक्टर्स नेम इज राजा आजाद सिंह, और वो धारा सिंह ने एक्चुअली वो कैरेक्टर निभाया है। सो द सीन इज के that man is lying on the ground like this, और suppose this is that character, और उस कैरेक्टर के हाथों और पाँवों से what they do is ऐसे रस्सियाँ बांध के, तो घोड़े बांधे होते हैं। So here is a horse standing here, here is a horse standing here, और यहाँ से भी एक रस्सी बंधी हुई है। So here is a horse standing here as well, and here is a horse standing here as well. So if you now imagine this, it looks like a sarcomere type of thing. So that Raja Azad Singh in the center here is actually mimicking, in our particular case, myosin filament, you see. So that is myosin in the center. और ये जो ऊपर ये रस्सियां हैं जो घोड़ों के साथ बनी हुई हैं, these are representing actin filaments. The idea is they are trying to torture this guy, और ये घोड़े इस डायरेक्शन में मूव करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, चारों घोड़े इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट the idea is that the man is so powerful कि वो अपने पाँव यूं ऊपर की तरफ खींचता है तो ये जो रस्सियां हैं इस तरफ स्लाइड करती हैं, और ये हाथ अपने इस तरफ ही खींचता है तो ये हाथ वाली रस्सियां भी इस तरफ स्लाइड करती हैं। Just like on a myosin filament, actin filaments are actually sliding. So that is also an example of sliding filament theory. I hope this concept is very much clear now. So that's the first heading that we had to understand, the concept of sliding filament theory. कौन से filaments slide कर रहे हैं? Actin. किस फिलामेंट पर स्लाइड कर रहे हैं? मायोसिन पर। ओके, अब पढ़ लेते हैं इसको। नाउ देयर इज अ फिगर जो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, शोज द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ अ सार्कोमेयर एंड अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द सार्कोमेयर। सो लेट्स हैव अ लुक एट फिगर 6.5, एंड एट द फिगर 6.5 if you have a look here, so this is the relaxed state and this is the contracted state. In the contracted state what's actually happening is you have to actually look at this area. इस एरिया को अगर आप फोकस करें तो यहाँ देखें एक्टिन कितना कम ओवरलैप कर रहा है। दिस इज द एक्टिन फिलामेंट, पतली वाली लाइन, ये बीच में मोटी वाली लाइन इज द मायोसिन फिलामेंट। जब ये यूं और ये यूं मूव करेगा पूरे का पूरा यूनिट तो इस तरह की पिक्चर बनेगी। देखें, इट्स अ बिग ओवरलैप, सो दे आर बेसिकली स्लाइडिंग। एक्टिन प्रोटीन्स आर एक्चुअली स्लाइडिंग इनवर्ड ऑन द मायोसिन प्रोटीन। ओके, इन द रिलैक्स स्टेट द एंड, अब ये सारी वही बात लिखी है जो मैंने बताई आपको, इसको खुद पढ़ लो। द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ next paragraph says, but what causes the actin filaments to slide inward among the myosin filaments? ये इसका जवाब तो भी थोड़ी देर में आपको मिलेगा कि किस तरह से ये एक्चुअली सारे जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं मायोसिन पर इनवर्ड स्लाइड करते हैं। We will discuss this, अभी थोड़ी देर में ये बात आएगी, ठीक है। Now this whole process comes, you know, in a form of a very high energy dependent mechanism. So इसके लिए बहुत सारा ATP चाहिए। Basically we need a lot of ATP for muscle contraction, and ये जिक्र बार बार इस चैप्टर में होगा कि ATP के बगैर contraction नहीं हो सकती। Okay? In the next few sections we describe these molecular process of contraction in detail. तो इस पूरे heading में आपको कौन सी terminology explain कर दी है? Sliding filament theory. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट मायोसिन फिलामेंट। ये जो मायोसिन फिलामेंट हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि ये सेंटर में जो थिक प्रोटीन है, ये जो थिक प्रोटीन है, दिस इज मायोसिन। ये मायोसिन फिलामेंट्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल मायोसिन प्रोटीन। ये बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बनता है। Each of the myosin molecule has a molecular weight of about 480 kilodalton या 480,000 Dalton.
shows the organization of many molecules to form a myosin filament as well as their interaction. अब वो myosin molecule जो है is composed of 6 polypeptide chains. There are 2 heavy chains, protein chains की बात हो रही है, each with a molecular weight of 200 kilodalton and 4 light chains. अब ये जो heavy और light chain की arrangement है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस diagram में. So if you look at this diagram, these are the heavy chains. जो ये लंबी सी tail बन रही है, the tail of the myosin filament, उसमें the tail is formed by intertwining of 2 heavy chains. ये एक आपको लाइट पर्पल दिख रही है और एक रेड कलर टाइप की चीज़ दिख रही है. सो ये जिगजैग इस तरह से ऐसे लग रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स है. दीज आर द हैवी चेन्स. अच्छा, ये हैवी चेन्स एक एंड पे बनाते हैं ऐसे टेल और दूसरे एंड पे ये बनाते हैं इस तरह ग्लोबुलर हेड. और ये जो हेड है इस पर आके अटैच होती हैं लाइट चेन्स. लाइट चेन्स जो 2 लाइट चेन्स हैं वो वन ऑफ द हैवी चेन के हेड के साथ अटैच होती हैं उसी, और जो बाकी की 2 लाइट चेन्स हैं वो सेकेंड ऑफ द हेड. तो 2 हेड्स बेसिकली बन रहे हैं. एक हेड, या इसको आप मतलब 2 हेड तो एक्चुअली नहीं है, एक ही हेड है लेकिन उसके 2 पार्ट्स बन रहे हैं. एक पार्ट इधर बन गया देखें और एक पार्ट इधर बन गया. अब ये जो हेड्स डेवलप हुए हैं ये बेसिकली हैवी चेन्स और लाइट चेन के कंपोजिशन से हुए हैं. टेल में क्या हो रहा है कि दोनों हैवी चेन्स मौजूद हैं, लेकिन हेड में क्या हो रहा है कि एक हैवी चेन अलग हो गई पर्पल वाली और एक हैवी चेन अलग हो गई रेड वाली, और हर हैवी चेन के साथ 2 लाइट चेन्स आके अटैच हो गई. तो ये पूरा एक हेड बन गया. अब ये जो हेड बना है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस डायग्राम में देखो, ये जो बाहर चीज़ निकली हुई नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअली किसी मायोसिन प्रोटीन का हेड है. ये किसी दूसरे मायोसिन प्रोटीन का हेड है. ये किसी तीसरे मायोसिन प्रोटीन का हेड है. इन हेड्स को हम नाम देते हैं क्रॉस ब्रिजेस. यही वो हेड्स हैं जो एक्टिन फिलामेंट के साथ एक्चुअली अटैच होकर उसको स्लाइड करवाते हैं. सो ये जो प्रोटीन की कॉम्पोजिशन है, मायोसिन प्रोटीन की कॉम्पोजिशन, इट्स वेरी मच डेट्रीमेंटल फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता था. सो दैट्स दिस मच इंपॉर्टेंट. ओके, ये अक्सर मुझसे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर मायोसिन प्रोटीन के इतने सारे हेड्स निकले हुए हैं यहाँ पे. यस, ये एक अलग हेड है, ये एक अलग हेड है. ये उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये कोई एक मायोसिन प्रोटीन नहीं है. इट्स लाइक सो मैनी मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन वन सार्कोमेयर. एक सार्कोमेयर में बहुत सारे मायोसिन प्रोटीन्स है, तो हर एक का अपना अपना हेड निकला हुआ है. ठीक है, सो ये हेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. द 2 हैवी चेन्स रैप स्पाइरली अराउंड each other to form the tail, and then we have also discussed how the head is produced, and the head is also what we call the cross bridge. Okay, now the myosin filament is made up of 200 or more individual myosin filament. ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इतने सारे heads हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे myosin proteins हैं. roughly around 200 myosin filaments होते हैं एक sarcomere के myosin में. Okay, so 200 even more individual myosin molecules make up the myosin filament. The central portion of one of these filament is shown there. वो भी हमने देख भी ली डायग्राम. This is all something that we have covered. क्रॉस ब्रिजेस की हमने बात कर ली है, और ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये टेल के साथ एक एंगल बनाते हैं. दैट एंगल इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. ओके, एक्चुअली मायोसिन तो मूव नहीं करता, एक्टिन स्लाइड करता है. तो उस स्लाइडिंग के लिए ये क्रॉस ब्रिजेस का एंगल इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंज एंगल भी कहते हैं. Now the total length of each myosin filament is uniform. It's almost about 1.6 micrometers. Note, however, that there are no cross bridges head at the center of the myosin filament for the distance of about. ये अब common sense की बात है. बात ये है सारी कि हमें क्रॉस ब्रिजेस की ज़रूरत साइड्स पर है. देखिए, सेंट्रल एरिया में नहीं है. सेंट्रल एरिया इज़ अ डिवाइड ऑफ दी हेड्स ऑफ मायोसिन. साइड पर इसलिए क्योंकि साइड पर एक्टिन है, उसी एक्टिन को आपने पुल करना है. तो अगर एक्टिन यहाँ बीच में होता तो बीच में भी होते हेड्स. तो दैट्स अ सिंपल फिलॉसफी इन द बॉडी. जो चीज़ जैसे जितनी चाहिए होती है उतनी होती है. ठीक है, नाउ टू कंप्लीट द पिक्चर, द मायोसिन फिलामेंट इज ट्विस्टेड सो दैट ईच सक्सेसिव पेयर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो इसको. दिस ट्विस्टिंग, ये जो ट्विस्टिंग का फिनोमिना है मायोसिन पूरी प्रोटीन का, इट इंश्योर्स दैट द क्रॉस ब्रिजेस एक्सटेंड इन ऑल द डायरेक्शंस अराउंड द फिलामेंट. अब अगर ये 2D स्ट्रक्चर होता ना, यानी सिर्फ इस तरह से होता कि मायोसिन प्रोटीन ऐसे है और हेड ऊपर है और नीचे हैं और ऊपर हैं और नीचे हैं, ऐसा नहीं होता. इसमें एक टर्न होता है, ट्विस्टिंग होती है. ट्विस्टिंग से होता ये है कि मायोसिन फिलामेंट के हर तरफ हेड निकले हुए होते हैं, और वो हेड निकलना हर तरफ ज़रूरी है ताकि वो एक्टिन से अच्छे तरीके से बाइंड करें और बाइंड करके उसको इनवर्ड पुल कर सकें. ओके, सो आई एम गोइंग वेरी स्टडी एंड वेरी स्लो विद दिस चैप्टर सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्मिनोलॉजीज. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, adenosine triphosphatase, activity of the myosin head. अब ये जो मायोसिन के हेड की हमने बात की थी, आपको पता है कि हेड किस चीज़ से मिलकर बना है. हेड इज कंपोज्ड ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन्स.
इसमें एक कैपेसिटी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी बड़ी ज़रूरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो प्रॉपर्टी बॉस ये है कि जब कभी ये हेड चाहे एटीपी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इस एटीपी के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकता है एडीपी के मॉलिक्यूल में, और इसमें से रिलीज होगा एक हाई फॉस्फेट एनर्जी बॉन्ड, यानी एटीपी को क्लीव कर सकता है। और वो चीज़ जो एटीपी को क्लीव कर सके उसे हम नाम देते हैं एटीपीएज। सो हम अब सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट्स का हेड है उसके पास एटीपीएज एक्टिविटी है। ओके, सो दैट्स द होल बॉटम लाइन व्हिच इज रिटन हियर. Another feature of the myosin head that it is essential for muscle contraction its function as ATPase enzyme. As explained later, this property allows the head to cleave the ATP and use the high energy phosphate from the ATP. ये जो सारा फंडा मैंने आपको यहाँ समझाया है, that's the whole bottom line of the story. कि head can combine with or cleave the ATP into ADP and phosphate, and this activity is known as ATPase activity. So head के पास ये जादू भी मौजूद है. Now let's talk about something else. तो मायोसिन की सारी स्टोरी समझ में आ गई. मायोसिन, अब ज़रा रिवाइज कर लो इसको एक दफ़ा कि मायोसिन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जनाब. मायोसिन में 2 हैवी चेन्स हैं और 4 लाइट चेन्स हैं. जो 2 हैवी चेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड होती हैं, टेल बनाती हैं, और एक एंड पर जाके एक हैवी चेन अलग हो जाती है, दूसरी हैवी चेन अलग हो जाती है, और इन हैवी चेन्स के साथ लाइट चेन्स आके मिलकर क्या चीज़ बनाती हैं? हेड. और हेड के पास हेड को दूसरा नाम हम देते हैं क्रॉस ब्रिज का, और हेड के पास एटीपीएज एक्टिविटी मौजूद है. ठीक है जी, तो ये सारी बात समझ में आ गई. नाउ ये तो मायोसिन की स्टोरी थी. अब बात करते हैं जरा एक्टिन फिलामेंट्स की. एक्टिन फिलामेंट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं? दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर एक तो एक्टिन खुद, then there is tropomyosin, and then there is troponin. तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि there are different types of proteins within the actin filaments. Okay, the backbone of the actin filament is double-stranded F-actin protein molecule represented by 2 light-colored strands. अभी देखते हैं. Each strand of the double F-actin helix is composed of, this is well too much detail, आपको ये weight वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, so don't worry about the sizes, nanometers and all these things. बस इतना पता हो कि एक्टिन फिलामेंट्स में एक्टिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोनिन होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है. ईच एक्टिन फिलामेंट इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर. अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. अब ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स क्या हैं? इस डायग्राम को अगर देखें तो सारी बात इसमें समझ में आ जाएगी. सो दिस इज ऑल रिप्रेजेंटिंग द प्रोटीन एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट. इसमें अगर आप देखें, सो वी हैव दिस इंटरट्वाइंड या इंटरमिंगल्ड प्रोटीन फिलामेंट्स जो ऐसे कर्व करके जिगजैग बना रहे हैं. दीज आर द कोर एंड दे आर मेड अप ऑफ एफ एक्टिन प्रोटीन. अब इसके साथ साथ देयर आर ऑल्सो दीज डार्क शेड वन कॉल्ड द ट्रोपोमायोसिन. सो एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन आपस में ऐसे जिगजैग पैटर्न बनाते हैं. और इन एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ कहीं कहीं आपको देखें ये इस तरह के बबल 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 नजर आ रहे हैं. दीज आर द ट्रोपोनिन प्रोटीन्स. सो ट्रोपोनिन प्रोटीन्स हैं, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स हैं और एक्टिन प्रोटीन्स हैं. ठीक है, अब ट्रोपोमायोसिन जो है, द एक्टिन फिलामेंट ऑल्सो contains another protein which is called tropomyosin. So इस tropomyosin का size है तकरीबन 70,000 Dalton या 70 किलो Dalton and length of about 40 nanometer. Don't remember the size, this is not important for you. Contraction occurs only when appropriate signal causes a conformation change in tropomyosin that uncovers the active sites on the actin molecule and initiates. So इस tropomyosin और actin और troponin complex की पूरी beauty ये है कि इनके पास hidden sites होते हैं. वो साइट्स अगर एक्सपोज हो जाएंगे तो कैल्शियम बाइंड कर सकेगा और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. ओके, और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं एक्चुअली इन्होंने बाइंड करना है किस चीज़ के साथ? इन्होंने बाइंड करना है जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, या क्रॉस ब्रिजेस का दूसरा नाम था हेड. किस चीज़ का हेड? मायोसिन का हेड. तो ये एक्टिन मायोसिन के हेड के साथ तब बाइंड करेगा जब ये हिडन साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट अनरेवल हो जाएंगे, अनकवर हो जाएंगे. ओके, अभी थोड़ी देर में इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे. तो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन मौजूद है. अब अगली है ट्रोपोनिन. अटैच इंटरमिटेंटली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द ट्रोपोमायोसिन are additional proteins which are known as troponin. These protein molecules are actually complexes of 3 loosely bound protein subunits, each of which plays a specific role in controlling the muscle contraction. One of the subunit, troponin I, has a strong affinity for actin.
The other, which is called troponin T, has a strong affinity with tropomyosin, and a third, which is called troponin C, has a strong affinity with calcium. Now that's very important. ये छोटे से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये they are made up of 3 सब यूनिट. ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला. इस डायग्राम में यहाँ पे देखें, these are the ट्रिपल यूनिट्स यू सी हियर, 1 2 3. तो ये जो 3 सब यूनिट्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं और इनकी अलग अलग बाइंडिंग एफिनिटीज़ हैं. सो जो ट्रोपोनिन आई है, इट बाइंड्स विद एक्टिन. जो ट्रोपोनिन टी है, इट बाइंड्स विद ट्रोपोमायोसिन. और जो तीसरा पोर्शन है, ट्रोपोनिन सी, इट बाइंड्स विद कैल्शियम. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज बिलीव्ड टू अटैच ट्रोपोमायोसिन टू द एक्टिन. अब इसकी ब्यूटी ये है कि जब कभी देयर इज हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, और ये हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कब होगा, अब ज़रा पूरा साइकिल जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाया था उसको याद करने की ज़रा कोशिश करें. व्हाट वाज द साइकिल? द साइकिल वाज दिस. देयर वाज एसिटाइल कोलिन by the nerve ending, increase sodium entry into the cell, which was depolarization. Increase sodium ने जाके sarcoplasmic reticulum से increase calcium निकाला था. ये calcium troponin complex के एक part के साथ bind करेगा जो कि calcium के साथ bind कर सकता है, which is called troponin C. Troponin C can bind with calcium. अब जैसे ही ट्रोपोनिन सी कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, यहाँ पे कॉन्फर्मेशनल चेंज होती है और जो एक्टिव साइट्स हैं वो कवर नहीं रहते, दे बिकम अनकवर्ड एंड देन दे गो एंड बाइंड विद द हेड्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन, और फिर ये सारा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ओके, तो ट्रोपोनिन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, interaction of one myosin filament, 2 actin and calcium ion causes contraction. ये जरा सुने. A pure actin filament without the presence of troponin tropomyosin complex binds instantly and strongly with the heads of the myosin molecule. Then if troponin tropomyosin complex is added to the actin filaments, the binding between the actin and myosin does not take place. Therefore it is believed, now listen to this carefully, therefore it is believed that the active sites on the normal actin filament are inhibited और फिजिकली कवर्ड बाय ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स. और जैसे ही कैल्शियम इस ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, ये जो हिडन साइट्स हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो ये सारी बात जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को हल्के में नहीं लेना, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है यार. इसमें देखो ये लाइट कलर वाला जो बैंड चल रहा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर ऑल द एक्टिन फिलामेंट्स. जो डार्क कलर वाला बैंड चल रहा है, ये सारा ट्रोपोमायोसिन है. और ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ये ट्रोपोमायोसिन पर है, तो इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स. दिस इज नोन एज ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स. और जैसे ही कैल्शियम इस पर बाइंड होता है, तभी जाकर एक्टिव साइट्स अवेलेबल होती हैं. तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब इस कॉम्प्लेक्स को हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा बाय कैल्शियम. ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यार, वीडियो को स्लो करके देखो ताकि समझ में आए. नाउ एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स बाय कैल्शियम आयंस, ये मैं एक्चुअली बता चुका हूँ, आपको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा. In the presence of large amounts of calcium, the inhibitory effect of troponin tropomyosin complex on the actin filament is inhibited, which means कि कैल्शियम जब होगा तो ये जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव साइट्स को कवर नहीं करेगा और एक्टिव साइट्स अवेलेबल हो जाएंगे. और जब एक्टिव साइट्स अवेलेबल हो जाएंगे देन दे विल बाइंड विद मायोसिन हेड्स. सो अब इस डायग्राम में जरा देखें, दिस अप हेयर दिस इज द एक्टिन प्रोटीन, दिस हेयर इज द मायोसिन प्रोटीन. और ये एक्टिन और मायोसिन का जो इंटरेक्शन होगा यहाँ पर, हेड ऑफ मायोसिन और एक्टिन के एक्टिव साइट्स के बीच में, ये इंटरेक्शन सिर्फ उस वक्त होगा जब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिट होगा. और वो तब होगा जब देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम. सो कैल्शियम विल इनहिबिट एंड मूव द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ताकि ये इंटरेक्शन हो सके एक्टिन और मायोसिन का. जब ये इंटरेक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, कहानी खत्म है ना. और ट्रोपोनिन का कौन सा वो पार्ट था जो कैल्शियम के साथ बाइंड करता था? ट्रोपोनिन सी. So this should now be making sense to you. Okay, now interaction of the activated actin filament and myosin cross bridges, the walk along theory. The walk along theory, या इसको दूसरा नाम हमने क्या दिया था, if you remember, sliding filament theory. Sliding filament theory इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि how muscles contract. और ये contraction सिर्फ तभी होगी जब एक्टिन के
एक्टिव साइट्स एक्सपोज होंगे, और वो एक्सपोज कब होंगे? जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स के साथ। एज सून एज द एक्टिन फिलामेंट इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम आयंस, द हेड्स ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस फ्रॉम द मायोसिन फिलामेंट बिकम अट्रैक्टेड टू द एक्टिव साइट्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स। दैट्स इट, सिंपल स्टफ है। अब ये पावर स्ट्रोक क्या होता है? दैट सिंपली बेसिकली जब मायोसिन का हेड एक्टिव साइट के साथ कंबाइन करता है और इनवर्ट पुल होता है, तो इसको हम नाम देते हैं पावर स्ट्रोक। सिंपल स्टफ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ईच ऑफ द क्रॉस ब्रिज इज बिलीव टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। हर क्रॉस ब्रिज अपना अलग अलग काम करता है। ईजी स्टफ। नाउ एटीपी इज द एनर्जी सोर्स फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वेयर अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क इज परफॉर्म्ड। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो एक्चुअल फिजिकल वर्क हो रहा है, और जब कभी फिजिकल वर्क होगा देन वी नीड एटीपी, and ATPs are actually cleaved into ATP. Okay, now large amounts of ATP are cleaved to form ADP during the contraction process, and the more work performed by the muscle, the more ADP is cleaved. This phenomena is called the fan effect. Easy है, बस उसको मुश्किल नाम दे दिया है भाई। जितना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा मसल काम करेंगे, उतना ज़्यादा ATP यूज़ होगा। सिंपल चीज़ है, उसको बस नाम दे दिया अलग से फनी सा, fan effect. Now the following sequence of events is believed to be the means whereby effects occur. कौन से इफेक्ट अकर्स देखते हैं? बिफोर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस द हेड ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस बाइंड विद द एटीपी, और आपको पता है कि जो हेड ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस थे दे हैड द एटीपीएज एक्टिविटी। तो एटीपी जो है वो क्लीव हो जाता है और एडीपी में प्लस अ फॉस्फेट। नाउ दिस हैज़ अ हाई एनर्जी। ओके, नाउ when the troponin tropomyosin complex binds with calcium, active sites on the actin filament are uncovered. ठीक हो गई बात, समझ में आती है? The bond between the head of the cross bridges and the active site of actin filament causes conformation change and a power stroke happens. तो inward movement of actin start हो जाती है। देखो अब हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जो टर्मिनोलॉजीज समझी थी उनका यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि what is head of myosin, अब मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि what is actin. I'm just using them in the sentences. और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पीछे से जाके देखें। Now once the head of the cross bridge stills, the release of ADP and phosphatase that were previously attached to the head is allowed. ठीक है, ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि ATP यूज़ हो जाता है। After the head has detached from the actin, the new molecule of ATP is cleaved. जाहिर है जितनी दफ़ा ये इंट्रैक्शन होगा एक्टिन और मायोसिन के बीच में, जितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन होगी नया ATP यूज़ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा ATP टूटा वो सारी ज़िंदगी यूज़ हो रहा है। When the cocked head with its stored energy derived from the cleaved ATP binds with the new active site on actin, it becomes uncocked again. So this process goes and goes and goes on. ATP आता है, वो ATP क्लीव होता है by the head of myosin, एक्टिव साइट्स एक्सपोज होते हैं एक्टिन पर, इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ख़त्म होता है, दोबारा नया इंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, नया एटीपी यूज़ होता है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, दस द प्रोसेस अगेन एंड अगेन प्रोसीड्स अंटिल द एक्टिन फिलामेंट्स पुल द Z membrane against the end of the myosin. ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा। सपोज अगेन दिस इज द मायोसिन हेयर एंड सपोज दिस इज द एक्टिन फिलामेंट हेयर, तो ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये शेप इस तरह की नहीं हो जाती कि पूरे का पूरा एक्टिन बिल्कुल अंदर तक यूँ आ जाता है और काइंड ऑफ इस तरह की शेप बन जाती है, बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा एक दूसरे को। तो कंप्लीटली इनवर्ड पुल उस वक्त तक एटीपी इस्तेमाल होते रहेंगे। इसको हम कहते हैं प्योर या फुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, यानी मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज द रिलैक्स स्टेट, यानी अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे गैप मौजूद है, यहाँ मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, okay, now the amount of actin and myosin filament overlap determines the tension developed by the contracting muscle. Now that's too much of something to understand, लेकिन मैं आपको ये इस ग्राफ पे एक चीज़ समझाऊंगा। So if you look at this graph, here we have on x-axis the length of sarcomere and on the y-axis we have the tension developed in the muscle fiber obviously. ये सिंपल चीज़ है। देखो जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, इस चीज़ को गौर से सुनो, द मोर द कॉन्ट्रैक्शन, जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी मुझे बताओ सार्कोमेयर का साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। देयर विल बी डिक्रीज इन द साइज ऑफ सार्कोमेयर, क्योंकि सार्कोमेयर ऐसे इन्वर्ट पुल हो रहा है ना। जब इस रिलैक्स स्टेट में होगा तो सार्कोमेयर का साइज ज़्यादा है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सार्कोमेयर का साइज कम होगा। तो जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी स्ट्रॉन्ग, सार्कोमेयर का साइज उतना कम होगा और मसल में टेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी। टेंशन जाहिर है ज़्यादा होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। तो ये सिंपल सा फंडा है, ज़रा अब इसको इस डायग्राम में देखते हैं। इस पॉइंट को देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी पर लेंथ ऑफ द
सार्कोमेयर सबसे ज़्यादा है, देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द अदर पॉइंट्स. सो दिस इज द सिचुएशन. यू सी लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर इज 1, 2, 3 और 4 के बीच में है. सो वेरी हाई लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर. तो इस डायग्राम को जरा देखो, पॉइंट नंबर डी को. सार्कोमेयर कितना लंबा है? इतना लंबा सार्कोमेयर, इतना लंबा सार्कोमेयर है. और एक्चुअली ये सार्कोमेयर जो है ना, ये अब कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेसिटी से बाहर है, क्योंकि टेंशन देखें कहाँ है. इस ग्राफ को अगर आप इंटरप्रेट करें, इस पॉइंट को अगर आप इंटरप्रेट करें, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पर मैं आपसे पूछूं तो लेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा. लेकिन टेंशन इन द मसल क्या है? बहुत कम. तो कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेसिटी क्या है? बहुत कम. ओके लेकिन आप ज़रा पॉइंट बी और सी को देखिए. पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर द पॉइंट्स, बोथ दिस पॉइंट्स इफ़ यू लुक है, These are the points जहाँ पे जो लेंथ ऑफ सार्कोमेयर है वो मिडवे है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. समथिंग लाइक दिस, बी एंड सी. यू सी मीडियम साइज सार्कोमेयर, और मीडियम साइज सार्कोमेयर में दिस इज द टेंशन, यानी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. एंड इफ़ यू लुक एट पॉइंट ए, सो पॉइंट ए में सार्कोमेयर की लेंथ सबसे कम है, तो शॉर्टेस्ट सबसे बड़ा सार्कोमेयर डी में, उसके बाद बी और सी में मीडियम साइज सार्कोमेयर, और सबसे छोटा सार्कोमेयर है पॉइंट ए पर. सो पॉइंट ए पर एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एज कम्पेयर टू ऑल दीज पॉइंट्स. ओके सो दैट्स ये ग्राफ्स यूजुअली आपके अंडर ग्रेड एग्जाम्स में एक्चुअली नहीं पूछते, पोस्ट ग्रेड एग्जाम्स में पूछते हैं, यूएसएमएलई में और एमआरसीपी में. बट एनीवेज, तो इसको मैं क्विकली पढ़ देता हूँ इन्होंने क्या लिखा है. इन द फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ सार्कोमेयर लेंथ एंड द अमाउंट ऑफ मायोसिन एक्टिंग फिलामेंट ओवरलैप. टू द राइट आर द डिफरेंट बोरिंग. एट पॉइंट डी ऑन द डायग्राम, actin filament has pulled all the way out to the end of the myosin filament and no actin myosin overlap is there. So point D पर हमने यही देखा था कि actin myosin overlap बिल्कुल नहीं है. There is zero actin myosin overlap. Okay. At this point, the tension developed by the activated muscle is zero. There is zero tension. Zero tension. हमने देखा था. Very low tension and very high sarcomere length. Then as the sarcomere shortens and the actin filaments begin to overlap, the length of the sarcomere decreases, but there is increase in tension. That's the whole bottom point. Bottom line सारा यही है कि जितना sarcomere का length कम होगा, tension और contraction उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है. Then another very I would say boring heading is effect of muscle length on the force of contraction in the whole. Oh, that's like something. So I'm actually skipping this graph for now. अगर आपको particularly कोई इस ग्राफ में क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इस पर कंफ्यूज नहीं कर रहा अभी. So I'm just leaving it. Okay. Now, relation of velocity of contraction to load. A skeletal muscle contracts rapidly when it contracts against no load to a state of full contraction in about 0.1 second. So अगर आप बगैर किसी weight को उठाए अपना muscle contract करते हैं, so it contracts very very rapidly. When loads are applied, जैसे जब आप exercise कर रहे होते हैं, dumbbells पकड़े हुए हैं, तो अब आपने actually loads apply कर दिए हैं, the velocity of contraction decreases progressively as the load increases. यानी अगर आप 2 किलो का डंबल उठाएंगे तो आपकी velocity of contraction कम होगी. अगर आप 5 किलो का डंबल उठाएंगे तो velocity और कम हो जाएगी, मसल स्लो contract करेगा. ठीक है. When the load has been increased to an equal the maximum force that the muscle can exert, the velocity becomes zero. ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि सपोज आपने 2 किलो का डंबल उठाया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, अभी बाइसेप आपका काम कर रहा है. 5 किलो का उठाया, अभी भी काम कर रहा है, स्लोली काम करेगा लेकिन करेगा. 10 किलो का उठा लो, शायद 10 किलो का भी उठा लो, शायद 20 किलो का भी उठा लो, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 1000 किलो का डंबल उठाओ तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि अब आपकी जो फोर्स है वो इस लोड से कम है. इसीलिए देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल. मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और वो इफेक्टिवली कोई भी वर्क नहीं कर सकते. ठीक है. दिस डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विद लोड अकर्स बिकॉज अ लोड ऑन अ कॉन्ट्रैक्टिंग मसल इज रिवर्स फोर्स दैट अपोजेस द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स. अभी थोड़ी देर में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोड एंड द वर्क एंड द फोर्स. बेसिकली बात ये है कि जो आपके मसल्स हैं वो ये जो डंबल्स हैं इन पर एक फोर्स लगा के इनको पुल करते हैं. अगर तो ये वाला लोड आपकी फोर्स से कम है तो ये मूव हो जाएगा, लेकिन अगर लोड बहुत ज़्यादा है और आपकी फोर्स कम है तो देयर विल बी नो मूवमेंट. सिंपल एज दैट. ओके राइट. अब बात को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसके बारे में एक्चुअली हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, बट लेट्स डू दिस वन मोर टाइम एंड दैट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब जाहिर है बार बार हम ये बात कर रहे हैं स्टार्ट से कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी यूज होती है. ठीक है. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट अ लोड इट एक्चुअली परफॉर्म्स वर्क. आप कोई भी चीज़ जब उठाते हैं तो आप एक लोड उठा रहे हैं बेसिकली, सो यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वर्क, और वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है. यू नीड एनर्जी व्हेनेवर यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क.
इट्स अ सिंपल फार्मूला। अच्छा, मैथमेटिकल टर्म्स में वर्क की डेफिनेशन ये है, वर्क इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द लोड, सो दैट डी इज द डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द लोड, सो एल इंटू डी इज एक्चुअली वर्क। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, यानी इसका मतलब समझ में आ रहा है यार, मैं निकल गया आगे बगैर ये बताया कि इसका क्या मतलब है। वर्क मतलब जो आपने मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, लोड मतलब जो वेट आप उठा रहे हैं, और डिस्टेंस मतलब जब फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप्स यूज़ कर रहे हैं अपने और डंबल उठा रहे हैं, सो इफ़ दिस इज़ फॉर एग्जांपल योर आर्म एंड फोर आर्म और यहाँ आपके हाथ में डंबल्स मौजूद हैं, तो इसको आप ये जो मूव कर रहे हैं दैट इज़ द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट लोड, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी। Now, the energy required to perform the work is actually derived from the chemical reactions in the muscle cells during contraction, as described in the following sections. आइए देखते हैं 3 sources of energy for muscle contraction. Most of the energy required for muscle contraction is used to trigger the walk along mechanism, जो sliding filament theory थी उसमें energy यूज होती है, ठीक है, but small amounts of energies are also required for पंपिंग ऑफ द कैल्शियम आइंस। मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आइंस निकलते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो वो जो कैल्शियम निकल रहा है उसके लिए भी एटीपी चाहिए। जो सोडियम एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था उसके लिए भी एटीपी चाहिए। सो एटीपीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर समथिंग अदर देन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म था जिसमें एक्टिन और फ्लामिन एक दूसरे के साथ, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग मैकेनिज्म सारा चल रहा था, वहाँ तो एनर्जी चाहिए ही, लेकिन कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के लिए भी एनर्जी चाहिए और सोडियम का जो एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन है उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी इन द मसल अबाउट 4 मिलीमोलर, इट्स एन इंपॉर्टेंट नंबर टू रिमेंबर। एक दफ़ा मुझसे एग्जाम में पूछ लिया था कि कितना एटीपी होता है मसल फाइबर के अंदर, मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली उस वक्त, लेकिन अब मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ मुझे वो वक्त याद आता है। इज सफिशिएंट टू मेंटेन द फुल कॉन्ट्रैक्शन फॉर ओनली अबाउट 1 to 2 seconds, यानी सारा अगर ATP यूज कर लें तो ओनली 1 to 2 सेकंड ये कॉन्ट्रैक्शन है। द ATP इज स्प्लिट टू फॉर्म ADP which transfers energy from ATP molecule the contracting machine, ये हो गई बात हमने कई दफ़ा की। देन एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 2 द ADP, अच्छा ADP जो बना है ATP से, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इस क्योंकि इसमें से फॉस्फेट निकल गया ना, फॉस्फेट निकल गया और वही तो यूज हुआ है एज एन एनर्जी बॉन्ड। तो ये ADP इज रीफॉस्फोराइलेटेड, इसमें दोबारा फॉस्फेट एक ऐड कर दिया जाता है, इज रीफॉस्फोराइलेटेड, ताकि नया ATP जनरेट किया जा सके। सो दैट्स हाउ इट नॉर्मली हैपेंस इन द बॉडी कि ATP से ADP बनता है और ADP दोबारा रीफॉस्फोराइलेट हो जाता है ताकि दोबारा ATP बना ले, एंड दैट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ओके, व्हिच अलाउ द मसल्स टू कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट। वरना तो देखो क्या होता, आपका एक मसल फाइबर है, उसके पास टोटल 4 मिलीमोलर ATP है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारे का सारा ATP यूज हो गया, कहानी खत्म, दोबारा अगली दफा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा मसल। ऐसा तो नहीं होता ना, आप अपने मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब चीज़ों में मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो साइकिल है कि ATP से ADP बन रहा है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और ये ADP दोबारा ATP बना रहा है। सो देयर इज अ रीसाइक्लिंग प्रोसीजर गोइंग ऑन, यानी बार बार एक फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है। सो वो जो फॉस्फेट ADP में ऐड हो रहा है वो कहाँ से आता है? द फर्स्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी to reconstitute ADP is a molecule which is known as phosphocreatinine. Phosphocreatine, it carries a very high energy phosphate, तो ये phosphate दे देता है ADP को। यानी सवाल इस वक्त ये है कि जो ATP आपका कन्वर्ट हो गया था ADP में, तो इस ADP को फॉस्फेट कहाँ से लाके दिया जाए ताकि ये दोबारा ATP बना दे। तो वो फॉस्फेट आता है, उसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। पहली सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है फॉस्फोक्रिएटाइन। दिस हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ phosphocreatine has a slightly higher amount of free energy than each of the ATP bond is irrelevant. Therefore, phosphocreatine is instantly cleaved and it releases its energy और ये फौरन फॉस्फेट दे देता है ADP को। तो ADP को रिप्लेनिश करने की पहली सोर्स है फॉस्फोक्रिएटाइन, ओके। और क्या सोर्स है देखते हैं। देयरफॉर द कॉमन हो गया। द सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, अच्छा ये जो फॉस्फोक्रिएटाइन है, इससे जो फॉस्फेट मिल रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी देखो हो गई कितनी, 5 to 8 सेकेंड्स। अगर सिर्फ मसल के इंडिजिनस ATP पर चलते हैं तो ओनली 1 to 2 सेकेंड्स, लेकिन अब चूंकि फॉस्फोक्रिएटिन मौजूद है तो कैपेसिटी बढ़ गई है।
अच्छा, सेकंड सोर्स क्या है जनाब फॉस्फेट का? द सेकंड सोर्स ऑफ फॉस्फेट इज ग्लाइकोलाइसिस व्हिच हैपेंस विद इन द मसल सेल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, द पूरा पाथवे आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन प्रीवियसली स्टोर्ड इन द मसल सेल, तो मसल में जो पहले से ग्लाइकोजन मौजूद है वो ब्रेकअप होता है एंड इट ऑल्सो गिव्स फॉस्फेट, ताकि उस फॉस्फेट से एडीपी से एटीपी बनाए। सो दैट इज द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस glycolysis mechanism is twofold. First, the glycolytic reactions can occur even in the absence of oxygen. तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी glycolysis होगा और ATP बनेगा, and therefore the muscle continues to contract and now the capacity is enhanced to 1 minute. You see, अगर सिर्फ मसल के इंडिजिनस ATP पे चलते, कोई रीफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो only 1 to 2 seconds. लेकिन फॉस्फोक्रिएटिनिन आ गया 5 to 8 सेकेंड, कैपेसिटी बढ़ गई कॉन्ट्रैक्शन की, ग्लाइकोलिसिस की वजह से और बढ़ गई कैपेसिटी, है ना। नाउ सेकेंड एडवांटेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, पहला एडवांटेज क्या था कि ग्लाइकोलिसिस कैन अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सेकेंड एडवांटेज ये है कि द रेट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज अबाउट 2.5 टाइम्स एज रैपिड एज एटीपी फॉर्मेशन इन द रिस्पॉन्स टू सेलुलर फूड स्टफ सच। सो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है, अभी वो थर्ड सोर्स है, बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो एटीपी बनता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। ओके, द थर्ड एंड द फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी जो हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं वो सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, जाकर के ग्लूकोज पूरा यूटिलाइज होता है थ्रू द ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वो हमारी बॉडी में इज द थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। मोर देन 95% ऑफ ऑल एनर्जी यूज बाय द मसल फॉर सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्शन इज ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीडेटिव। तो दैट्स बेसिकली द मेन सप्लाई ऑफ एनर्जी, मेन सप्लाई ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इट अलाउज यू टू कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स फॉर 2 to 4 hours. वाओ, ब्यूटिफुल beautiful, only from the stored carbohydrates. बाद में और सोर्सेज भी यूज हो सकती हैं, you can even contract the muscles for longer time. Okay, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट सबकी समझ में आ गया कि एटीपी कहाँ से आता है। एटीपी आपके मसल सेल्स में मौजूद भी है अबाउट 4 मिलीमोलर, लेकिन ये रिप्लेनिश होता रहता है। एटीपी इज अगेन एंड अगेन बीइंग प्रोड्यूस। 3 सोर्सेज हैं उसके प्रोडक्शन की जो आपको याद रखनी है। पहली सोर्स है फॉस्फोक्रिएटाइन, दूसरी सोर्स है ग्लाइकोलाइसिस और तीसरी सोर्स है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, नाउ एफिशिएंसी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक पूरा प्रोसेस है ना, जिसको हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है, तो इसको इंजन से कंपेयर करो ज़रा। जिस तरह इंजन्स काम करते हैं, इंजन्स भी ऐसे ही काम करते हैं कि वो कोई दे परफॉर्म सम वर्क, कोई लोड होता है, इस तरह की चीज़ें। सो आपके मसल्स भी इमेजिन दैम लाइक इंजन्स। तो जब इंजन्स की बात होती है तो उसकी एफिशिएंसी की बात होती है कि कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स यूज़ हो रही है, कितना लोड यूज होकर के लिफ्ट किया जा रहा है और कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है एज फ्रैक्शन। तो इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। बेसिकली कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मसल्स जो हैं दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट इंजन्स। सो एफिशिएंसी ऑफ अ मसल इज आई मीन एट बेस्ट कंडीशन समटाइम्स ओनली 25%। सो दिस इज टू वे लेस ऑफ एन एफिशिएंसी, काफ़ी कम एफिशिएंसी है ये। द रीजन फॉर दिस लो एफिशिएंसी इज दैट अबाउट हाफ ऑफ द एनर्जी in the food stuff is lost during the formation of ATP, and even then only 40 to 45% of the energy ATP itself can be converted back to work. पॉइंट ये है कि जितनी भी हम फूड पार्टिकल कंज्यूम कर रहे हैं उससे जितना एटीपी बनने का प्रोसीजर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर है, वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ हीट ज़्यादा है और एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है ओनली अबाउट 25-30%. Also very low efficiency engine in your body. Okay, one example is muscles. Remember this. Maximum efficiency can be realized only when the muscle contracts with a moderate velocity. If muscles contract slowly or without, that's not very high yield stuff. The concept that I have given you is important, that the efficiency of muscle contraction is only about 25 to 30%, not more than that. Okay, बाकी सारा जो है वो heat की form में waste हो जाता है. Right. Now the last bit of this chapter, जिसमें बहुत सारा irrelevant या unnecessary stuff कह लो, एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, वो भी है, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. उन डेफिनेशंस में हमको फोकस करना है, उनको अच्छे से समझना है. तो आइए पढ़ते हैं some characteristics of whole muscle contraction. Many features of muscle contraction can be demonstrated by eliciting muscle twitches. Okay, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं, आपने अपने मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी में ये प्रैक्टिकल्स किए होंगे लैब में, मसल ट्विच एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें एक्चुअली फ्रॉग के मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं
उसमें कुछ लोड लगा देते हैं एंड देन देयर इज अ काइनेसियोग्राम जिसमें ग्राफ बन रहा होता है. सो पावर लैब जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी की. सो मसल ट्विच एक्सपेरिमेंट, सो आई एम श्योर आपने किए होंगे. उनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज, अगेन ये वाली जो हेडिंग है ना, इसमें देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो हमको समझनी है एंड देन देयर आर सम स्टफ व्हिच वी विल सिंपली स्किप, जिसको पढ़ने का कोई फ़ायदा आपको एग्जाम में नहीं होने लगा. सो लो यील्ड स्टफ है, उसको हम छोड़ेंगे. Isometric contraction, that's an important term to remember. In isometric contraction, what do we actually mean is that in these types of contraction, the muscles do not shorten, यानी muscles की length कम नहीं होती. Whereas in isotonic contractions, muscles shorten at a constant tension. अब जरा इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर डायग्राम्स वगैरह देखते हैं. Now muscle contraction is said to be isometric when the muscle does not shorten during contraction, and isotonic when it shortened but the tension remains the same. अभी इन डायग्राम्स में समझाता हूँ. In the isometric system, the muscle contracts against a force without decreasing the muscle length shown in the bottom panel. So, for example, if you look at this diagram, सपोज ये आपके बाइसेप मसल हैं और उस पर एक लोड लगा दिया है और ये लोड इतना ज़्यादा है कि आपका मसल इसको एक्चुअली पिक कर ही नहीं सकता. सो जो फोर्स आप लगा रहे हैं उससे ये लोड लिफ्ट नहीं हो रहा. सो व्हाट वुड दैट मीन? आप इतना ज़्यादा वजन से, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 1000 kg आप इसको पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट योर मसल अगेंस्ट दिस मच हैवी लोड. तो होगा ये कि मसल में किसी हद तक कॉन्ट्रैक्शन यानी मायोसिन और एक्टिन के दरमियान इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो इंटरेक्शन इतनी पावरफुल नहीं होगी कि इस लोड को लिफ्ट कर सके. सो इन दैट सिनेरियो द मसल is actually not contracting. The muscle is not contracting means the length of the muscle is not changing, and when the length of the muscle is not changing, such type of contraction, actually contraction तो हो ही नहीं रही लेकिन myosin और actin के interactions हो रहे हैं, so वो कहलाता है isometric type of contraction. The length is not being able to change. So isometric is always when there is too much load. Isometric contraction occurs when the load is greater than the force of the muscle. यानी मसल में इतनी फोर्स नहीं है कि इतने हैवी लोड को लिफ्ट किया जा सके. So that is what we call isometric contraction. The fibers, actin and myosin, they are still interacting with each other. They are trying to pull it up, but the force is not enough. The weight is too much. Okay, so ये isometric contraction कहलाती है. So that's an easy thing for you to remember. Okay, जबकि isotonic में the weight is, the load is not heavy or it's not more than the force, therefore the muscle can actually contract. तो muscle contract होता है but the tension throughout the muscle fasciculus remains the same. So this is isotonic contraction, the contraction is happening, and this is isometric contraction. Right. Characteristics of isometric twitches recorded from different muscle. This is one thing that I would for example skip for now. पॉइंट सारा इसका ये है, मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ कि बॉडी में डिफरेंट मसल्स हैं और उन मसल्स की कैपेसिटी टू हैंडल डिफरेंट लोड इज़ डिफरेंट. ऑब्वियसली हर मसल का अलग अलग साइज़ है, उसके अलग अलग सार्कोमेयर की उसमें यूनिट्स होंगे, उसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी होगा. फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स की रेंज भी तो बहुत बड़ी है ना. वी हैव सम मसल्स विच आर वेरी वेरी स्मॉल मसल्स. फॉर एग्जांपल स्टेपीडियस इज अ मसल विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर एंड इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मसल. इसको आप कंपेयर करें किसी और मसल के साथ, सच एज गैस्ट्रोक्टोमिस, इट्स अ बिग मसल. सच एज बाइसेप, इट्स अ बिग मसल. क्वाड्रेटस फीमोरस, बिग मसल. सो जितना ज़्यादा बड़ा मसल होगा उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और जितना छोटा मसल होगा उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी उतनी ही कम होगी. सो फॉर एग्जांपल आप स्टेपीडियस जो कि बहुत छोटा सा मसल है, उस छोटे से मसल से ये एक्सपेक्ट करें कि वो 10 किलोग्राम के डंबल को लिफ्ट कर ले, वो पॉसिबल नहीं है ना. नॉट पॉसिबल, इस मसल की कैपेसिटी नहीं है. लेकिन अगर बड़ा मसल होगा सो इट कैन एक्चुअली पुल अप द लोड ऑफ 10 kg वेरी वेरी ईजिली. ठीक है, और एक वक्त आएगा, देयर विल बी अ पॉइंट कि जब बड़े से बड़ा मसल भी एक वेट को पुल नहीं कर सकेगा. यानी अगर आपका बाइसेप है, बाइसेप 10 किलो तक वेट उठा लेगा, 20 उठा लेगा, शायद 50 उठा ले, शायद 100 उठा ले, लेकिन अगर बाइसेप पर आप 1000 kg का लोड डालेंगे तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा. यानी अब वो कोशिश तो करेगा कॉन्ट्रैक्ट करने की, लेकिन उसका साइज कम नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. सो हर मसल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंचने का अलग अलग टाइम है. जितना छोटा मसल होगा वो उतना जल्दी थक जाएगा, जितना बड़ा मसल होगा वो उतना देर से थकेगा. थकने का मतलब ये है कि जब मसल
थकने का, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थकना इन दिस टर्म इज कि लोड इतना ज़्यादा हो गया कि अब मसल उसको पुल नहीं कर पा रहा. दिस इज़ व्हेन आई एम सेइंग कि द मसल इज़ नाउ टायर्ड. सो मसल जब थक जाएगा, ये डिपेंड करता है कि मसल का साइज़ क्या है. छोटा मसल सच एज स्टेपिडियस जल्दी थकेगा, यानी वो जल्दी लोड के अगेंस्ट हार जाएगा. या दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि अगर छोटा सा मसल है तो वो छोटे से वेट पे हार मान जाएगा, 5 kg के वेट को वो उठा नहीं पाएगा. लेकिन अगर बड़ा मसल है तो हो सकता है वो 50 kg के वेट तक को आराम से उठा ले, इससे ज़्यादा को ना उठा सके. इससे बड़ा मसल है तो हो सकता है वो 100 kg के वेट को उठा ले. लेकिन एक लिमिट ऐसी ज़रूर आएगी जिसके बाद वो मसल उठा नहीं पाएगा, और ये वो लिमिट होगी जिसको हम कहेंगे अच्छा अब मसल चला गया है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में. और वो जो अपर लिमिट है वो डिपेंड करती है मसल के साइज पर. जितना छोटा उतना अपर लिमिट कम, जितना बड़ा उतनी अपर लिमिट ज़्यादा. इसीलिए जब आप ये ग्राफ देखते हैं तो इस ग्राफ में यू सी सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमस, ये बड़े बड़े मसल्स हैं. चूंकि ये बड़े बड़े मसल्स हैं तो काफ़ी देर के बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं. यानी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाने का मतलब क्या है, बड़ी देर के बाद ये थकते हैं. लेकिन जो छोटे मसल्स हैं, ऑक्यूलर मसल्स, स्टेपिडियस, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट इज रिटन इन दिस heading. Now, this is also very important heading, fast versus slow muscle fibers. As will be discussed more fully in upcoming chapters, जिसमें sports physiology को हम discuss करेंगे. जो muscle fibers हैं, skeletal muscle fibers, they are either fast type fibers or slow type fibers. Muscles that rapidly react, including the anterior tibialis, are composed mainly of the fast fibers. As the name indicates, these muscles will contract rapidly. अच्छा, कुछ ऐसे muscles हैं जिनका काम rapid contraction नहीं है बल्कि support देना है, slow contraction है, such as soleus muscle. You know, it is important for maintaining the erect posture. So such muscles are known as slow type muscles. अब slow type fibers को हम type 1 fibers भी कहते हैं, slow muscles को type 1 fibers भी कहते हैं. They are also called red muscles. उसका reason अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनमें myoglobin बहुत ज़्यादा होता है, mitochondria बहुत ज़्यादा होता है. So the slow fibers are smaller. पहला characteristic. Slow fibers are also innervated by smaller nerves. Slow fibers have more extensive blood supply. So that's an important point. Okay, so they have more blood supply, more capillaries, more oxygen. Slow fibers have greatly increased number of mitochondria ताकि oxidative phosphorylation ज़्यादा हो. Slow fibers contain large amount of myoglobin, इसीलिए they appear red. Okay, myoglobin complex with oxygen and therefore they are called red muscles. So all these are characteristics of slow fibers, which are also called type 1, which are also called red muscles. And then there are fast fibers. Now fast fibers are also called type 2 fibers. They are also called white muscle fibers. इनके characteristics उसके बिल्कुल opposite होंगे. Fast fibers are large for great strength of contraction. They are large. ये क्या थे? They were small. These are large. Fast fibers have extensive sarcoplasmic reticulum, बहुत ज़्यादा होता है mitochondria के बजाय. Large amount of glycolytic enzymes are there. Fast fibers have less extensive blood supply. Okay, fast fibers have fewer mitochondria and therefore they are white muscles. So ये तो एग्जाम में आप समझ लोगे, एग्जामिनर्स का ना one of the favorite question है. Tell me the differences between slow muscle fibers and fast muscle fibers. Very very important. Okay. Right now, some more concepts. They are not extremely useless. इसमें कुछ चीज़ें important हैं, such as motor unit. कुछ headings मैंने आपसे कहा कि इसमें भी आएंगी जो कि बिल्कुल ही irrelevant होंगी. We'll simply skip those. But I think motor unit is not one of them. All the muscle fibers innervated by a single nerve fiber. That's the concept. So ये जो basically एक मसल है, उस मसल की जो नर्व है, इस पूरे को मिलाकर हम नाम देते हैं मोटर यूनिट, जिसमें मसल खुद है और उसकी सप्लाई करने वाली नर्व है. Each motor neuron that leaves the spinal cord innervate multiple spindle muscle fibers, with the number of fibers innervated depending upon the type of the muscle. All muscle fibers innervated by a single nerve are actually called motor unit. यानी ये जो नर्व है इस मसल फाइबर को सप्लाई कर रही है, अगर किसी और को भी सप्लाई कर रही है. So any group of muscle fibers being supplied by a single nerve is all collectively known as a motor unit. In general, small muscles that react rapidly, यानी कि जो fast muscles हैं,
and whose control must be exact have more nerve fibers for fewer muscles. अभी सुने ज़रा, देखिए स्किल सेट की जब बात आती है, फाइन मूवमेंट की जब बात आती है, यानी जब आपको हाथ से लिखना है या कोई फाइन आर्टिस्टिक काम करना है, तो वहाँ पे हर मसल को अलग अलग नर्व सप्लाई दी जाती है ताकि फाइन मूवमेंट कंट्रोल हो सके. लेकिन जो कोर्स मूवमेंट्स होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके जो पोस्चुरल मसल्स हैं बैक के, या सोलियस है, जो आपके इरेक्टर मसल्स हैं जितने भी बैक पे मौजूद हैं, इरेक्टर स्पाइनी, ये वो बड़े बड़े मसल्स हैं जिनका काम फाइन मूवमेंट नहीं है. अगर फाइन मूवमेंट काम नहीं होता तो फिर ऐसे मसल्स, बड़े बड़े मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई कर रही होती है. लेकिन हैंड के जो मसल्स हैं जहाँ पे फाइन मूवमेंट है, तो वहाँ पे आई मीन देयर आर मल्टीपल नर्व सप्लाई. तो दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल. ओके, सो ये वाली बात यहाँ लिखी है. इन जनरल स्मॉल मसल्स दैट रिएक्ट रैपिडली एंड हुज कंट्रोल मस्ट बी एग्जैक्ट हैव मोर नर्व फाइबर्स एंड फॉर फ्यूअर मसल्स, यानी कम मसल्स होंगे लेकिन नर्व फाइबर्स ज़्यादा होंगे. एग्जाम्पल, एज फ्यू एज 2 to 3 मसल्स फाइबर्स पर मोटर यूनिट इन सम लैरिंजियल मसल्स. So larynx में obviously we are producing voices, आवाज़ बना रहे हैं, it's a very fine movement, तो वहाँ पे nerves ज़्यादा हैं. सो मल्टीपल मोटर यूनिट्स हैं, यानी अलग अलग मसल्स हैं, उसकी अलग नर्व है, फिर एक अलग मसल है, उसकी अलग नर्व है, तो एक मोटर यूनिट ये हो गया, एक मोटर यूनिट ये हो गया. देयर आर मल्टीपल मोटर यूनिट्स. ओके, एन एवरेज फिगर फॉर ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी इज क्वेश्चनेबल. दिस इज नॉट रेलिवेंट हियर. द मसल फाइबर इन ईच मोटर यूनिट आर नॉट ऑल बंच्ड टुगेदर. दैट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट. नाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्स समेशन. समेशन का मतलब होता है ऐड होना. इट मीन्स एडिंग टुगेदर ऑफ द इंडिविजुअल ट्विचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस टू इंक्रीजिंग the intensity of the muscle. Summation occurs in two ways: by increasing the number of motor units contracting simultaneously, which is called multiple. This is not high yield. This is the thing which I am saying I'm leaving. Tetanization and all these things, because ये हम आगे पढ़ेंगे टेक्नी में जब पैथोलॉजी वगैरह डिस्कस करेंगे. That's all. I mean, believe me, it's very important to understand कि मेडिसिन में आपको कौन सी चीज़ों को आप easily skip कर सकते हो. These are one of those, okay? And physiology is a big book of Guyton. तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या आपको छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है. So that is something that you should actually leave, okay? Now muscle tone के बारे में एक दो concepts हैं जो मुझे बताने हैं. Even when muscles are at rest, a certain amount of tautness, tightness is usually there in the muscle. आप अपने बाइसेप्स को हाथ लगा के देख लो, एक मसल की टोन होती है. उसका रीज़न ये होता है कि एक्टिन एंड मायोसिन इवन एट द रेस्टिंग स्टेज हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन. उसकी वजह से हमारे मसल्स में एक टोन होती है. ओके, सो दैट्स अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, नो बिग डील. Muscle fatigue. Prolonged strong contractions of muscle lead to well-known state of muscle fatigue. यानी muscles थक जाते हैं. Studies in athletes have shown that muscle fatigue increases in almost direct proportion to the rate of depletion of the muscle glycogen. ज़ाहिर है जितना ज़्यादा मसल यूज़ होगा उसका ग्लाइकोजन उतना ज़्यादा यूज़ होगा और मसल फटीग की तरफ जाएगा. Therefore, fatigue results mainly from the inability of the contractile and the metabolic processes of muscle fiber to continue supplying the same work output. बहुत देर तक मसल यूज़ करेंगे, मसल फटीग हो जाएगा, सेम आउटपुट नहीं रहेगा. आप ये जिम में भी फील करते होगे. आप बाइसेप उठाना शुरू करें, स्टार्ट में तो जाके दबादब शुरू हो गया मामला, लेकिन थोड़ी देर बाद मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है. However, experiments have also shown that transmission of nerve signal through the neuromuscular junction can diminish at least a small amount after intense prolonged muscle activity. Intense prolonged muscle activity and your muscles are fatigued. Okay, interruption of the blood flow on a contracting muscle leads to almost complete muscle fatigue within 1 to 2 minutes. Of course, well, okay, ये pathology condition, इसमें कोई important point नहीं है. So point muscle fatigue का हमने discuss कर लिया. Right now, a couple of important headings where we have to talk about remodeling. ये terms important है यार, ये मुझे करानी है. लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझ लो, लिवर सिस्टम का मतलब क्या है. ये सारी डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस: आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन का एक डिज़ाइन है. डिज़ाइन ये है कि द मसल्स हैव वन पॉइंट विच इज़ नोन एज ओरिजिन, और फिर देर इज़ अ पॉइंट विच इज़ नोन एज इंसर्शन. अब ये जो ओरिजिन और इंसर्शन है ये यूजुअली इस तरह होते हैं कि डिफरेंट बोन्स पर होते हैं, और उसका पर्पज़ ये है कि डिफरेंट बोन्स पर होने का so that if the muscle contracts तो वो बोन्स में मूवमेंट हो, और यही पर्पज़ मसल का होता है ना. अब यहाँ से फॉर एग्जांपल बाइसेप यहाँ पे अटैच है और ये बाइसेप यहाँ पे अटैच है, तो ये एक्चुअली एक पूरा लिवर बन जाता है. here we have the fulcrum of the liver and then here you actually see the liver and the bicep is then causing the movement of this machine. So that's a simple machine जिसमें एक fulcrum है, there is a joint there and there is a liver. So muscles actually act in the form of liver. ठीक है, so that's, इससे ज़्यादा डिटेल इसको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. Then there is a concept of
antagonistic muscles. This is an important terminology, antagonistic muscles. Antagonistic muscles का basically मतलब ये है कि in most of the compartments of your body, if there is a flexor compartment, there will be an extensor compartment on the opposite side. So for example, there is biceps and then there will be triceps. So जो tricep होगा back side पे, that is the extensor compartment. So हम इसको कहते ही हैं कि bicep and tricep muscles are antagonistic to each other. इसका पर्पस ये होता है कि देखो बेस लाइन में दोनों मसल्स यानी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, दोनों एक्टिवेटेड होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन वन ऑफ द मसल, नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन के हायर सेंटर्स यानी ब्रेन से कमांड क्या आ रही है. वन ऑफ द मसल हैज मोर डीपोलराइजेशन एंड देयरफॉर इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और जिस पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी वो मसल अपना एक्शन करेगा और दूसरा मसल अपना एक्शन नहीं कर पाएगा. यानी फॉर एग्जांपल बाइसेप्स ब्रेकाई में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फ्लैक्शन होगी, और ट्राइसेप्स में सेम टाइम पर कम कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसलिए एक्सटेंशन नहीं होगी. ठीक है. So virtually all body movements are caused by simultaneous contraction of agonist and antagonist muscles on the opposite sides. The process is known as co-activation of the agonist and antagonist. ये सारी बात यहाँ पे जो मैंने अभी explain की वो सब यहाँ लिखी है. So you may read it, you may simply leave it. You should have the concept of antagonistic muscles. They are the opposite muscles. One of them wins the race and it depends का higher center से command क्या आई है. Okay? यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि your muscles are actually beautifully designed कि they can actually remodel themselves. They can remodel themselves according to the needs. For example, those muscles which are not completely used, they undergo the process of atrophy, and then if the muscles are used too much, they increase their mass, and this is called muscle hypertrophy. The increase in the total mass of the muscle is known as muscle hypertrophy. Bodybuilders, pay attention. जो लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके मसल्स पे लोड ज़्यादा पड़ता है. जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा मसल्स में उतनी हाइपरट्रॉफी होगी, बड़े बड़े डोले, बड़े बड़े बाइसेप्स. When the total mass decreases, this is called muscle atrophy. ठीक है. Virtually all the muscles hypertrophy result from an increase in the number of actin and myosin filaments, causing enlargement of the individual muscle fibers. This condition is called fiber hypertrophy. ये डिटेल्स इरेलेवेंट है यार, सिर्फ हाइपरट्रॉफी एट्रॉफी की डेफिनेशन यहाँ याद रख लो तो इतना काफ़ी है यहाँ तक. ठीक है. अब ये कैसे हो रही है, और दैट इज़ नॉट एक्चुअली हाई यील्ड्स. एट्रॉफी में एक कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने बताया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटियोलाइसिस. लॉन्ग टर्म अगर मसल को यूज़ नहीं होगा तो एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन पाथवे है जो प्रोटीन्स को टैग कर देता है कि भाई ये वाली प्रोटीन है जो यूज़ नहीं हो रही, और इसको ले जाकर के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के सामने रख दो ताकि वो प्रोटीन डैमेज हो जाए. और यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स को इस तरह से टैग कर दिया जाता है. टैगिंग को हम नाम देते हैं यूबिक्विटिन टैगिंग या यूबिक्विटिन प्रोटीजोम पाथवे. और एक दफ़ा प्रोटीन पे टैग लग गया तो वो प्रोटीन चली जाती है इन फ्रंट ऑफ द protein breaking enzymes, and the process is called proteolysis. But this is too much of detail for the physiology chapter, so इसको यहाँ पे इतना ही समझ लो तो काफ़ी है. Adjustment of muscle length, not an important heading. Hyperplasia का मतलब ये है कि increase in the number of muscle fibers. देखो hypertrophy में कॉन्सेप्ट क्या था, hypertrophy में मसल का नंबर का फाइबर का जो नंबर है वो सेम है. यानी if this is the muscle fiber, जिसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो सेम नंबर है, वो चेंज नहीं हो रहा, मसल फाइबर चेंज नहीं हो रहा है. सिर्फ एक्टिन और मायोसिन क्या कंटेंट बढ़ रहा है, उसका साइज में इजाफा हो रहा है, एंड द नंबर ऑफ द प्रोटीन आर इंक्रीजिंग. सो सेल फाइबर्स सेम नंबर है, अंदर प्रोटीन बढ़ रही है. लेकिन हाइपरप्लेजिया इज द कॉन्सेप्ट जिसमें एक्चुअली नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, बट दैट्स नॉट वेरी यूजुअल, कॉमन नहीं है ये. ठीक है. सो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसमें एक्चुअली हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, हाइपरप्लेजिया नहीं हो रहा होता. ओके. हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, नॉट हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया के एक एग्जांपल है यूट्रस के मसल नंबर में इजाफा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Then if there is muscle denervation, it causes atrophy. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हुआ है और कोई नर्व कट गई, उसमें डैमेज हो गई, तो वो डीनर्वेशन कहलाता है, यानी एक कंपार्टमेंट को नर्व सप्लाई नहीं जा रही. When the muscle is no longer receiving the nerve supply, it no longer receives the contractile signals. Therefore, atrophy begins almost immediately. After 2 months, denervative changes also begin to appear in the muscle fibers. उसका साइज छोटा हो जाता है, दिखने में कम लगने लगता है, मास कम हो जाता है, बल्कीनेस कम हो जाती है. So that is all the effect of muscle denervation.
डीनर्वेशन, ठीक है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, एक्सीडेंट से हो सकता है, कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है उससे हो सकता है, बाज़ औक़ात किसी को फ्रैक्चर हुआ प्लास्टर बांधा उससे हो सकता है, सो मेनी थिंग्स. इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ डीनर्वेशन एट्रोफी मोस्ट ऑफ द मसल फाइबर्स आर डिस्ट्रॉयड एंड दे आर एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू, और मसल्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द फाइब्रस टिश्यू. दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चर, अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ओके, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है अगर ये स्टेज डेवलप हो जाए. दैट्स द वेरी एडवांस स्टेज ऑफ मसल डैमेज बाय डीनर्वेशन. Okay, now the very few things. Recovery of muscle contraction in poliomyelitis, development of macromotor units when some but not all nerve fibers to a muscle are destroyed, as in poliomyelitis. The remaining nerve fibers branch off to form new axons that then innervate many of the paralyzed muscle fibers. So that's an important thing. इसीलिए poliomyelitis के जो patients होते हैं उनमें ये phenomena हो रहा होता है actually, क्योंकि सारी nerves damage नहीं हुई होती, जो remaining nerves होती हैं वो actually sprout करती हैं और neighboring muscles को supply करती हैं. So new macromotor units बनना शुरू हो जाते हैं. ओके, और इसकी वजह से जो gross movements हैं, fine movements की बात नहीं कर रहा, gross मूवमेंट्स जो हैं वो इंटैक्ट रहती हैं. इसलिए पोलियो का पेशेंट जो है वो कदम उठा के चल सकता है लेकिन शायद फाइन मूवमेंट ना कर सके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, राइगोर मॉर्टिस क्या चीज़ होती है भाई? राइगोर मॉर्टिस होता है, ये डेथ की कहानी है. सेवरल आवर्स आफ्टर डेथ ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी गो इनटू अ स्टेट ऑफ complete contraction. This is called rigor mortis. Okay, सारे muscles contract करते हैं. The muscles contract and become rigid even with the action of, यानी death के बाद भी contraction होती है, और death के कुछ घंटों बाद contraction का जो process है उसे हम कहते हैं rigor mortis. This rigidity results from loss of all the ATP. Actually ATP खत्म हो जाता है, तो ATP जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, and ATP is required actually for separation of the cross bridges from actin filaments. And बात ये थी कि जब ये मायोसिन था, आपको याद है मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस थे, ये एक्टिन के साथ बाइंड कर रहे थे, और ये हमेशा तो बाइंड नहीं रहते ना, ये ख़त्म भी हो जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस ख़त्म भी होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए एटीपी यूज़ होता है. तो जब एटीपी होगा ही नहीं क्योंकि डेथ हो गई है, तो ये एक दफ़ा जो बाइंड हुए होते हैं मसल फाइबर्स ना, इनको हटाने के लिए कोई एटीपी नहीं है. सो दे आर इन द परमानेंट बॉन्डेज फॉर्म. एक्टिन और मायोसिन के दरमियान परमानेंट इंट्रैक्शन रहता है, और उस परमानेंट इंट्रैक्शन की वजह से पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइगोर मॉर्टिस. अच्छा, ये प्रोसेस फिर कुछ घंटों के बाद ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि एक्टिन और मायोसिन एक्चुअली डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं. तो जब एक्टिन और मायोसिन ही नहीं रहेंगे तो उनके दरमियान कोई बॉन्डिंग भी नहीं रहेगी, और जब बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो 15-20 घंटे के बाद बॉडी दोबारा रिलैक्स होना शुरू हो जाती है. ओके, सो ये सारा प्रोसेस इज़ वेरी हार्ड इन दोज कंट्रीज विद द टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई, सच एज साउथ एशियन रीजन जो है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे यूजुअली टेम्परेचर हाई रहता है. सो राइगोर मॉर्टिस थोड़ा जल्दी होता है, रादर देन सो मेनी आवर्स इट अपीयर्स अ लिटिल अर्लियर. ओके, नाउ तो ये राइगोर मॉर्टिस की कहानी थी जो आपको याद रखनी है ना. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी का मतलब ये है कि जब कोई भी मसल प्रोटीन अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से हट के कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी म्यूटेशन हुई है, सिंपल वर्ड्स में देयर इज़ अ म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटीन है वो डिफॉर्म्ड प्रोटीन बन रही है. वन ऑफ द वेरी कॉमनली रिपोर्टेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. दिस हैपन्स ओनली इन मेल्स बिकॉज दिस इज एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, देयरफॉर ओनली इन मेल्स. ओके, ओनली मेल डिजीज डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. इसमें डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की जो जीन है दैट इज म्यूटेटेड, और इसकी वजह से सम फंक्शंस ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन आर डिस्टर्ब्ड. ओके, एग्जैक्ट पैथोलॉजीज की अभी भी पता नहीं है, बट एनीवेज दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. पैथोलॉजी में ज़्यादा पढ़ेंगे यार इसके बारे में, फिजियोलॉजी में भी नहीं. नाउ सिम्टम्स ऑफ डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैव इंक्लूड मसल वीकनेस एंड that begins early in the childhood, rapidly progresses, or the patient is usually in wheelchair by the age of 12, and often respiratory failure, यानी diaphragm काम नहीं कर रहा, by the age of 30, death. A mild form of the disease is called Becker's muscular dystrophy. Is also caused by mutation of a gene that codes for dystrophin but has a later onset and a longer survival. Pathology का stuff है, अभी नहीं कर रहा touch इसको. So congratulations, we are done with the chapter of contraction of skeletal muscles. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.